intestine and large intestine. One of the diseases known as irritable bowel syndrome. Today we are going to discuss the irritable bowel syndrome. Actually, this is a functional disorder. By etiology, it is idiopathic. It is the most common disorder, primary and specialty care, and affects 7% to 21% of the world's population. Worldwide, it is the most common. High prevalence. In Americans, 12%, 14 million people are affected by these people's disease. It affects women more than men, 1.5 to 2 times more prevalent in women. Significantly, this means diminishes the quality of the life and work product. By definition, there are Rome criteria, Rome 4 criteria. There is a history behind the development of the criteria about this disease. Initially, in 1978, many criteria were there, 84 cruise criteria, then in 89, Rome criteria, then now we are with 2016 with Rome 4. These are the diagnostic criteria because this is the clinical diagnosis. Totally clinical. So what happens? There's a recurrent abdominal pain. It's the most important symptom along with other three symptoms. Recurrent abdominal pain averaging 1 day or more than 1 day per week in last 3 months with two or more than two following criteria. It is related to defecation. Remember that without abdominal pain, you cannot diagnose a patient as a IBS. Irritable bowel syndrome, however, this is the main symptom, recurrent abdominal pain. May be related to defecation, change in frequency, of stool associated with change in form or appearance of stool. इन तीनों में से दो होने जरूरी है with recurrent abdominal pain. It is a without abdominal pain, that is a recurrent, you cannot make a diagnosis of irritable bowel syndrome. And patients fulfilling these criteria for 3 last months consequently, and symptoms which arises more than 6 months before the diagnosis. मैंने आपको मरीज को 6 मंथ से पहले डायग्नोज नहीं कर सकते आईबीएस। कोई भी इसकी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, क्लिनिकल क्राइटेरिया है सारे इसके डायग्नोज करने के लिए। दैट्स व्हाई द टाइम इज गिवन if patient symptoms persist for 6 months and fulfilling the criteria for 3 months, then you will label as a IBS. So I have told you what has changed. मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, थोड़ी बहुत चेंज रही है वर्ड्स की।
पिछले जो क्राइटेरियाज बनते थे पेशेंट को किस तरह समझाना है कि वो व्हाट डू मीन बाय डेफिकेशन, फॉर्म ऑफ स्टूल, वो डिफरेंट लैंग्वेज के हिसाब से डिफरेंट एरियाज में लोगों की अपनी एक वर्डिंग होती है, उसकी वजह से चेंज होता होता ये रोम criteria 4. IBS can be divided into 4 subtypes on the basis of the Bristol stool form scale. इसमें पेशेंट से स्टूल फॉर्म पूछा जाता है. If patient is suffering from more than 25% of any of the form, just like here, hard, lumpy stool more than 25% of weak, that is type stool form 1 and 2, that is known as IBS constipation. If patient have a stool form type 6 and 7, more than 25% stools in the week, that is IBS diarrhea predominant. More than 25%, 6, 7, and more than 25%, 1, 2, they are known as mixed. And less than 25%, they are uncategorized. So 25% of bowel movements is the threshold for classification. ये 4 इसकी सब टाइप कहलाते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं IBS डायरिया predominant, IBS constipation predominant, IBS mixed, and IBS uncategorized or unclassified. Actually, if there is no abdominal pain, that is known as chronic functional constipation. If there is a no how they explain about the functional constipation, these are different words. Must include 2 of the following more than 25% of the defecation. स्ट्रेनिंग बाथरूम करते वक्त थोड़ा जोर लगाना पड़ता है. लंपी एंड हार्ड स्टूल, sensation of incomplete evacuation, sensation of anorectal obstruction. Stool may be removed by maneuver or less than 3 spontaneous defecation per. All words must include more than 2 of the following. अगर इन 6 में से कोई 2 कंप्लेन ऐसी हो जो हफ्ते की जितनी भी डेफिकेशन है उसकी 25% से ऊपर जाए, तो हम उसको लेबल करेंगे फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन. जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन में ये कोई स्टूल लेस देन हफ्ते के बाद आ जाए, या इनवर्ट्स में भी कब्ज को डेफिकेशन कॉन्स्टिपेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है. स्ट्रेनिंग, लंपी हार्ड स्टूल आ रहा है, इनकम्प्लीट इवेक्यूएशन हो रही है, anorectal obstruction महसूस हो रही है, तो यू कैन से दैट पेशेंट इज
might be suffering from chronic functional constipation. Diarrhea using stool less than 25% 1 to 2, that is constipation. More than 25% to 6%, that is in the diarrhea. जो ब्रिस्टोल हमने पढ़ा, इसमें 6 to 7 क्या है? फल्फी पीसीस, रेग्ड, मशी, वाटरी, नो सॉलिड पीसीस में, और 1 to 1 separate hard lump, type 2 sausage like but lumpy. Abnormal bowel movements that are usually diarrhea are more than 3 different types of stool per week. This is the definition of the diarrhea. What happens? This is functional diarrhea, functional constipation. They both may have a bloating and distension in common. We will label as a irritable bowel syndrome when there is a pain. Remember, without pain, you can say this is a functional diarrhea, this is a functional constipation. If they develop recurrent abdominal pain, then you can say this patient is suffering from IBS. So, bloating and distension is a common, and to go towards the IBS, there should be a recurrent abdominal pain. उसका होना लाजमी. Pathophysiologically, the multifactorial pathophysiology of IBS, there may be a abnormal motility of the gut. There is no single cause or no single factor responsible for development of the disease. There are many factors found in different patients. Different factors work or work as a pathophysiological cause. Abnormal motility, visceral hypersensitivity, genetic predisposition, psychological factors, inflammation, immune dysregulation, microbiome, malabsorption issues, and diet may lead to the development of the IBS. As far as concerned the abnormal motility, environmental stress, strong emotions may prompt dysmotility in small and large intestine. कभी कभार खौफ, डर, परेशानी में या स्ट्रॉन्ग इमोशनल में गट की मोटिलिटी बढ़ जाती है. स्मॉल बाउल डिसमोटिलिटी एक्सीलरेटेड मील ट्रांजिट accelerated, and that may lead to the diarrhea predominant IBS. Colonic dysmotility, changes in the speed and coordination of the digestive organ due to the impairment of the muscles and GI tract, frequently observed in patients who are prone to diarrhea. Environmental stress or strong emotion may affect on the small bowel dysmotility, leading accelerated meal transit, chronic colonic dysmotility, changes in speed and strength or coordination of digestive organ, muscle tone की जो coordination होती है वो सही नहीं होती, and this factor is usually found in patients who are suffering from diarrhea predominant IBS.
Visceral hypersensitivity, reduce pain threshold upon balloon distension in the bowl. पहले जितनी गैस पे आदमी को दर्द नहीं होता, थोड़ी बहुत तो गैस, you know that gases production is continuously going on in our large intestine as well as in the small intestine, but we do not feel what happened. Visceral hypergesia, पेशेंट का जो पेन थ्रेशोल्ड है वो डिक्रीज हो जाता है, थोड़ी गैस पे दर्द होना शुरू लगता है कि पेट फूल गया, हालांकि गैस वही होती है जो पहले बनती थी, मगर अब ये कि थोड़ी गैस पे आपको महसूस होने लगता है, यू फील आपके विसरल जो है वो विसराज है वो हाइपरएलर्जेसिया में हो गए, उनको थोड़ी गैस पे दर्द होना शुरू होता है, डिस्टेंशन फील होती है। Allodonia heightened sensitivity to standard intestinal action. एलोडाइनिया ये है कि जो स्टिमुला है आपको पेन नहीं करता था पहले, अब वो स्टिमुला सेम स्टिमुला आपको पेन की फीलिंग कराए, दैट्स नोन एज एलोडाइनिया। Potential for increased hypersensitivity, sensation at all levels of brain capacity. ये एक न्यू थ्योरी है कि भाई ब्रेन का एक्सेस की हाइपरसेंसिटिविटी और सेंसिटाइजेशन is also playing part in the development of the IBS. ये उन्होंने एक टॉप डाउन मॉडल और बॉटम अप मॉडल है। ब्रेन की कुछ कंडीशंस हैं that may affect on the gut, and there are certain conditions of the gut that may affect on the brain. This gut brain and gut axis. Exteroceptive stress, psychological factors, early life events, chronic stress, adverse life events, डिफरेंट किस्म के स्ट्रेस जो होते हैं वो ब्रेन पे जब मेमोरी में होते हैं, दे अफेक्ट ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस पे काम करते हैं, असरअंदाज होते हैं, that may lead to the neuroplasticity of enteric nervous system, altered neuroendocrine signaling. तो ये वाले स्ट्रेस इस ऑटोनॉमिक सिस्टम पे बड़े इफेक्ट होते हैं, एंड दैट कॉजेस द एबनॉर्मल सिग्नलिंग लीडिंग टू द एनहांस्ड गट सेंसिटिविटी, जिसकी वजह से विसरल हाइपरसेंसिटिविटी होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसमोटिलिटी डेवलप होती है, इंक्रीज गट म्यूकोजल परमेबिलिटी पे है, म्यूकोजल इम्यून एक्टिवेशन, अल्टर्ड गट माइक्रोबायोटा। फ्रॉम बॉटम टू अप मॉडल में एंटेरोसेप्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, अल्टर्ड गट माइक्रोबायोटा जिसे हमने सीवो पढ़ा, डाइटरी फैक्टर्स, कुछ खाने ऐसे होते हैं that lead to the enteric system, enteric nerve system of the gut, and that affect on the brain through the spinal afferent or sympathetic system, and that leads to enhanced sensory perception and processing, altered symptoms related behaviors, decreased coping, psychological disturbance. गट में कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो थ्रू सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम ब्रेन पे अफेक्ट करती हैं, ब्रेन की कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू गट पे अफेक्ट होती है। दिस इज अ मॉडल थ्योरी है, एक फैक्टर बताया जाता है ब्रेन गट एक्सिस, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ IBS.
Psychological factors, distress prevalent in patients seeking care of for IBS, more than 50% जो आते हैं उनमें underlying psychological distress मौजूद होता है. Disease associated causes, influence in psychological function of GI tract जैसे मैंने अभी बताया. Psychosocial comorbidities, life stress lead to the poorer outcome. पेशेंट के ऊपर स्ट्रेस इतने ज्यादा होते हैं और जस्ट लाइक एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, पेरोनोया, that is irrational and persisting feeling that people are out to get out. मैंने ये एक किस्म का डेल्यूंस होते हैं, शिजोफ्रेनिक पेशेंट्स में होते हैं पेरोनिया, के एक चीज का रेशनल दूसरी चीज के साथ बनाते हैं, कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, ये मुझे ये हो जाएगा, ये मुझे ये होने वाला है, समथिंग गोइंग रॉन्ग, लाइक दैट. दे विल अफेक्ट ऑन द गट. इन्फ्लेमेशन एंड इम्यून डिसरेगुलेशन. कभी कभार ये होता है कि एक्यूट एंटेरिक इन्फेक्शन ऑफ प्रीसीड्स आईबीएस, मोस्टली डायरिया. Suggested mechanism post infectious IBS residual GI inflammation. इन्फेक्शन हुआ वो या तो रह गया है, कभी डायरिया होती रही है, अच्छी तरह ट्रीट नहीं हुआ. अल्टर्ड म्यूकोजल परमेबिलिटी और इम्यून फंक्शन, गट का इन्फेक्शन ने उसकी परमेबिलिटी को चेंज कर दिया या इम्यून फंक्शन को, या इन्फेक्शन एक्ट एज अ एक्टिवेशन ऑफ ट्रिगर फॉर द मास्ट सेल एक्टिवेशन, जिसकी वजह से वहां पर सीक्रेशन चलती रहती है, और दैट विल लीड टू द डायरिया या इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन रिलीज. जेनेटिक, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस and alter receptor sensitivity at gut mucosa may contribute in inflammation and immune dysregulation. So certain infections are found that may lead to the IBS, that is the diarrhea predominant. Microbiome shaped by host factor, genetical nutrients, but influences host health. इसी को हमने अच्छी तरह पढ़ा है कि जो हमारा माइक्रोबायोम जो रेजिडेंट्स होते हैं, they major play role in the development of this, and this also affects, may contribute to pathogenesis via increased permeability, altered immune profile. It also affects on gut-brain axis, modulation of gut neuromuscular function. तो माइक्रोबायोम का बड़ा रोल है. So how you will diagnose the case of the IBS? No good. It is totally clinical. Careful history. Exclude other organic cause by asking certain questions and good examination. क्योंकि टोटली डायग्नोसिस क्या है, कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं है, टोटली इट इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री बेसिस, जो अपने क्राइटेरिया पर ही पूछना है मरीज से. रिकरेंट एब्डोमिनल पेन अलॉन्ग विथ एसोसिएशन है उसकी बाउल हैबिट्स से, डेफिकेशन के साथ है, स्टूल के फॉर्म के साथ है, कितने अरसे तक रही है, किस तरह होता है, ऑल.
बाकी अदर हिस्ट्री जो होगी वो आप एक्सक्लूड करेंगे, कोई ऑर्गेनिक काज ना हो। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आपने पढ़ ली, उसके लिए आपने क्या क्या चीजें ढूंढनी है, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन के बारे में पूछना है, गुड एग्जामिनेशन करना है, देखना है कि टेंडरनेस है या नहीं है, कोई और फीचर जो सजेस्टिव ऑफ अदर डिजीज ऑर्गेनिक काज का हो उसको ढूंढना है। अगर वो एग्जामिनेशन पे यू आर नॉट फाइंडिंग एनी अदर थिंग, देन यू विल से the patient is suffering from IBS. याद रखें जिनका क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है तो यू हैव टू वर्क अप फॉर अदर ऑर्गेनिक काजेज। एज फार पर से उस डिजीज के लिए तो कोई टेस्ट नहीं होती है, कोई एग्जामिनेशन की कहीं पे भी क्राइटेरिया में नहीं था तो उसके एग्जामिनेशन पे ये फाइंडिंग मिलेगी तो आप यू विल थॉट अबाउट द आईबीएस, कहीं पे भी नहीं लिखा है। ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्राइटेरिया में थी कि इसकी ये चीज अगर ऊपर नीचे हो तो आप उसको आईबीएस डायग्नोज करेंगे। मगर जो भी इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे, जितनी भी डिजीज है जिनका इन्वेस्टिगेशन पे डायग्नोसिस नहीं होता है या एग्जामिनेशन पे डायग्नोसिस नहीं होता है, तो उन चीजों का बाकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आते हैं ना उनको सबको आपने पहले रूल आउट करना होता है। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन इट्स वेरी डिफिकल्ट। मेडिसिन में आप जिन डिजीजों का हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस होता है ना, यू शुड बी केयरफुल। अब आपने बाकी डिजीज में हम क्या करते हैं, पॉजिटिवली जाते हैं कि देखते हैं भाई इसमें ये चीज मिली है तो अब दूसरी चीज मिली। और जिन डिजीज में डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है ना उसमें आप नेगेटिवली देखते हैं, जो उसकी डिफरेंस चला रहे हैं पहले उनको निकालना होता है, उनको निकाल के बाहर करना, फिर ये एक बचेगी उसको फिर आप कहेंगे ये इन मेडिसिन सच डिजीज आर वेरी डिफिकल्ट। क्या आपको एक डिजीज नहीं, फिर एक्सक्लूजन की जितनी डायग्नोसिस करने के लिए तो एक डिजीज होता है उसके पीछे आप 2-3 टेस्ट कराएंगे डायग्नोस हो जाएगी। एक्सक्लूजन के लिए जितनी बड़ी लिस्ट डीडी में आती है सारी लिस्ट को आपने पहले एक्सक्लूड करना है कि ये नहीं है, इसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज नहीं है, एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है, कोई ऑर्गेनिक काज इसमें नहीं है, इसमें मेलिग्नेंसी नहीं है, ये प्रूव करना कि इसमें नहीं है वेरी डिफिकल्ट। आप ये आसानी से कह सकते हैं इसको तो ये, अगर आपने इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का डायग्नोस बनाना है, आपने एक दो टेस्ट करवाए उसमें इन्फ्लेमेटरी साइंस आए, एक तो आपको एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन नजर आ गए, आपने तो जल्दी से बोल देना है, बायोप्सी रिपोर्ट आ गई, आपने कहना भाई इसका डायग्नोसिस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। रिमेम्बर भाई मेडिसिन में इवन सर्जरी में भी यही है कि ये सर्जरी करनी चाहिए, ऑब्वियसली होता है भाई इसकी इंडिकेशन बन रही, अब इसको न करना, ये सर्जरी न की जाए, दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसमें सर्जरी ना करें, करने के लिए तो भाई क्राइटेरिया आते हैं फुलफिल हो जाते हैं, ना करने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लाइक दैट डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन हमेशा पार्टम पे रखते हैं। जब भी पेशेंट ऐसे सिम्टम के साथ आए उल्टा लिस्ट को उल्टा करके लेते हैं। आईबीएस है तो आईबीएस के जितने भी डीडी हैं कि वो ऊपर रख के पहले उनको एक्सक्लूड करेंगे, वो आखिर में जो बचेगा उसको आप क्या करेंगे, डायग्नोसिस बनाएंगे। सेम थिंग हियर, हिस्ट्री में डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, बाय विदाउट एब्डोमिनल पेन यू कैन नॉट मेक अ डायग्नोसिस ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये तो याद रखें, पहला सवाल पेट में दर्द है, उसके बाद बाकी चीजें पूछनी। डायरिया की डेफिनेशन ऊपर पढ़ ली, कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनिंग वर्ड जो होते हैं कॉन्स्टिपेशन के वो डिफरेंट होते हैं। मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ब्लोटिंग, अर्जेंसी, फीकल इनकंटिन्यूटी, एब्डोमिनल पेन, cramping, and look for the alarming feature. नेचुरल डायरिया याद रखिए, आईबीएस में नेचुरल डायरिया नहीं होती है। सिम्टम ऑनसेट आफ्टर 50 years of age,
ये यंगर एज में होती है, ओल्डर एज में नहीं होती। अगर आपको आईबीएस जैसी प्रेजेंटेशन अबव 50 इयर्स के बाद आए तो समझो कि समथिंग घूम रहा है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक जीआई डिजीज हो, जिसमें फैमिली में हिस्ट्री हो कि जीआई मेलिग्नेंसीज होती हैं, तो यू शुड बी केयर ऑफ, भले वो यंग पेशेंट क्यों ना हो। और रेक्टल ब्लीडिंग और अनएक्सप्लेन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, तो फिर भी आपने पेशेंट को फर्दर वर्कअप के लिए सोचना है, उसके लिए उसका काज ढूंढ के रहना है। ये आईबीएस नहीं हो सकता। अनइंटेंशनल अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो, उसमें भी आपने पेशेंट को वर्कअप करना है टू फाइंड आउट ऑर्गेनिक काज। वही बात हुई, ये सारी लिस्ट आपने ऊपर लिखनी है, इसके नीचे आखिर में रखेंगे। जब सब क्लियर हो जाए तो फिर आप कहेंगे भाई पेशेंट को आईबीएस है। तो दीज आर लुक फॉर द अलार्मिंग फीचर। तो ये आपके हिस्ट्री में मस्ट होने चाहिए, ये सवाल हमसे जरूर पूछने हैं। वही बात, हिस्ट्री के बाद डायग्नोसिस एक्सक्लूजन के लिए आपने टेस्ट करवाएंगे। जितनी भी आईबीएस की सब टाइप्स हैं उनमें सीबीसी और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की स्क्रीनिंग करवाएं। अगर डायरिया है, प्रीडोमिनेंट है, फीकल कैलप्रोटैक्टिन और लैक्टोफेरिन, ये एक फीकल में न्यू मार्कर है। अगर ये 200 से ज्यादा होता है तो हम उसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज डायग्नोस करते हैं। जैसे एक्सीलेंट टेस्ट कि ये इसको आईबीएस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को अलग करने वाली चीज है। मोर देन 200 आए तो आपने इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज रखना होता है, और अगर 100 और 200 के बीच में आए तो ये इनकंक्लूसिव आती है, ये एक्सक्लूड भी नहीं करती और इंक्लूड भी नहीं करती। यू हैव टू लुक फॉर अदर थिंग्स और यू हैव टू वेट फॉर समथिंग अदर, वेट फॉर टाइम। आपको देखना है कि कहीं ये और चीजें देखनी पड़ेंगी कि पेशेंट को आईबीडी तो नहीं है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज तो नहीं। अदर इन्फेक्शन डायरिया है तो डायरिया का दूसरा का इन्फेक्शन डायरिया से तो नहीं हो सकता है, आपने सिलेक्ट को रूल आउट करना है। ठीक है, जब भी कोलोन करें उसके लिए बायोप्सी जरूर लें। और बाइलेसिस CMC4 ये डिसऑर्डर्स होते हैं दैट लीड टू द बाइलेसिस की भी अगर मेल एब्जॉर्प्शन हो गया, आपने पहले ही पढ़ा है सीगो में कि जो डायरिया होती है वो बाइलेसिस की अनएब्जॉर्प्शन की वजह से होती है, तो उनकी बाइलेसिस की वो फिजिकल क्वांटिटी देखी है। इसी तरह इन्फ्लेमेटरी मार्क मिक्स में तो दोनों मिक्स की देखनी है, स्टूल डायरी, फीकल कल प्रोटेक्टेड सीआरपी, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। और कॉन्स्टिपेशन है सीवियर और मेडिकली रिफ्रैक्टरी, रेफर टू स्पेशलिस्ट फॉर फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। बायोफीडिंग डिफरेंट, जैसे नर्व कंडक्शन टेस्ट होती है, इस तरह की टेस्ट करके उसको डायग्नोस एक्सप्लेन किया जाता है। और प्रॉब्लम तो नहीं, मोटिलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। मैं जो गट के प्लेक्सेस में डिजीज होते हैं दैट लीड टू द डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ द गट एंड may comes in a differential diagnosis of the constipation. Next step, the treatment. Treatment usually by most mainstay is the psychological reassurance. Diet and lifestyle advice reassurance करें पेशेंट को, उनको साइकोथेरेपी करें क्योंकि मोस्टली it accustomed to the stresses. Education about the stimuli, consider the psychological treatment for non-stressors, pharmacotherapy, symptoms monitoring and follow-up. माइल्ड डिजीज में क्या है, सिर्फ माइल्ड डिजीज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड साइकोथेरेपी रिएश्योरेंस। एंड वेरी सीवियर देन यू गो फॉर द फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स। पेन, क्योंकि आपने तो पेन थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, पेन ट्रीटमेंट सेंटर पे न्यूरोमस मॉड्यूलेटर्स फॉर पेन, साइको
सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड कंटिन्यूइंग वर्कअप एंड केयर, उसका वर्कअप और फॉलोअप में रखना है पेशेंट को। दिस इज द मेन कि माइल्ड मॉडरेट में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मॉडरेट डिजीज में यू कैन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड साइकोथेरेपी प्लस में अगर बिल्कुल ही सीवियर हो जाता है देन यू कैन गो अलॉन्ग विद दीस थिंग अपने उसके पेन को कम करने के लिए डिफरेंट everybody listening me? मेटा एनालिसिस एक्सरसाइज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज देखा गया है कि मेटा ने 14 रैंडम कंट्राइज ये ट्रायल्स किए गए हैं जिनमें देखा गया है कि देयर इज इंप्रूवमेंट इन द जीआई सिम्पटम्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंजाइटी डिसीज हो जैसे आईबीसी रिलेटेड कोमोबिडिटीज विद एक्सरसाइज में बहुत डिक्रीज देखा गया। Sleep also they have demonstrated that poor sleep quality in patient with IBS. IBS वाले पेशेंट में देखा गया है कि वो कम करते हैं, तो उसको बढ़ाना चाहिए। फोर्थ में जो होते हैं poorly absorbed short chain fermentable carbohydrates cause gas production, luminal distension, इनसे अवॉइड करना होता है। ये सर्टन फूड्स होते हैं fermentable oligos डायमोनोसेक्राइड्स एंड पोलियोल्स, इसको फूड मर्ब्स कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं जिसमें लिग्यूम्स, सेलेक्टेड फ्रूट्स, वाटरमेलन, ब्लूबेरी, वेजिटेबल्स होते हैं। डाइसेक्राइड लैक्टोज, मिल्क बेस्ड फूड होते हैं। मोनोसेक्राइड स्वीटनर्स विद फ्रक्टोज, सेलेक्टेड फ्रूट्स जैसे एप्पल, ग्रेप्स, मैंगोज होते हैं। पोलियोल्स, स्वीटनर्स एंडिंग ऑल, सार्बिटोल एंड सेलेक्टेड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होते हैं। लो फूड में डाइट बेनिफिट 50 to 80% ऑफ पेशेंट्स डाइट। तो इन चीजों से परहेज की तो पेशेंट को, इसको कहते हैं लो फूड में जो फर्मेंटेबल फूड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पोलियोज जो होते हैं कम लेने से 50 to 80% पेशेंट में आईबीएस के सिम्टम्स इंप्रूव होता है। अवेलेबल थेरेपीज फॉर आईबीएस बेस्ड ऑन प्रीडोमिनेंट सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट, कोई एक काज है नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। मेन ट्रीटमेंट एश्योरेंस है, साइकोथेरेपी है। एब्डोमिनल पेन, एंटीस्पाज्मोटिक, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स देते हैं। रिफेक्समिन वर्क इन IBS diarrhea predominant, or these are the other drugs, prosecretory drugs होती हैं that causes increased secretion in the gut. Constipation, for constipation laxatives देते हैं, isofol देते हैं। These are the prosecretory drugs also having effect on the, these are the prosecretory drugs that cause the increased secretion of the water inside the gut, and that softens the, in the diarrhea predominant antispasmodic, loperamide,
tricyclic antidepressant, rifaximin, और 5-hydroxytryptamine agonist देते हैं। एंड ब्लॉटिंग डिस्टेंशन के लिए फोडमेप से अवॉइड किया जाता है और प्रोबायोटिक्स और रिफ्रेजिंग का भी। Okay, let's साइकोलॉजिकल थेरेपीज फॉर आईबीएस जो हमने पहले डिस्कस कर दिया है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, रियलाइजेशन थेरेपी, dynamic psychotherapy, multi-component psychotherapy. These are different modalities of the psychotherapy which should be offered to the patient. Antispasmodic drugs to relieve the abdominal pain discomfort by decreasing the contraction of smooth muscles in the bowel. Usually with diazepam, dicyclomine, peppermint oil may be very hydrocolloid by base taken at 20 to 30 minutes before the meal. TID, TDS dose में 3 टाइम देते हैं। Antidiarrheals prolong the time for the passage of contractions of colon, transit time को बढ़ाते हैं। Segmental contraction को बढ़ाते हैं आप colon, उसकी वजह से pressure develop होता है। Reduce rectal perception को reduce करते हैं। Commonly used agents are diphenhydramine, tropine, loperamide, loperamide is most frequently prescribed agent. Decrease frequency and urgency, improve stool consistency, motilum canal, does not release the pain or bloating, best taken 30 minutes before the meal. So overall is what we do, give the patient symptomatic treatment. कोई ऐसे पर से काज तो है नहीं, बस जो symptom हो रहा है उसको आपने treat करना। अगर bile acids cause block the action of the excess bile acids in the colon, cholestyramine or cholesterol or colcivilum, these are the bile acid binding agents that lead to the sequestration of the bile acid. Probiotics, single or mixed culture of live microbiotes that alter the GI flora, improve the bowel movement frequency, bloating, pain, and flatulence in patients with IBS. They have antibacterial, antiviral, and anti-inflammatory effect on the mucosa, can prevent or alter the flow of post-infectious IBS. उसमें ज़्यादा मौसर देखिए। Low quality of evidence regarding the form, dose, and combination to use. ये न्यूअर ड्रग्स हैं जिसमें अभी तक कोई इतना एविडेंस नहीं मिला है कि कितने डोज में कोई काम करते हैं। डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट डोज इस्तेमाल किया जाता है, बट it is thought that they have a different mechanism of action. They may act as antibacterial, antiviral, or anti-inflammatory in the gut. How these are the secretory, pro-secretory drugs, that's like secretory stimulant drugs. They affect on the guanylate cyclase agonist receptors. They also affect on the chloride channel. लुबिप्रिल न्यूअर ड्रग्स हैं, पाकिस्तान में शायद अवेलेबल ना हो, बाकी दुनिया में बहुत महंगी दवाई हैं जो न्यूअर एजेंट्स हैं। दे कॉज द इंक्रीज वाटर इनसाइड द गट, क्लोराइड आयन की in the lumen that will attract passively sodium and water inside the lumen. ये different drugs हैं जो डायरेक्ट क्लोराइड चैनल पे करते हैं या
दूसरे इंटरनल में साइक्लिक जीएमपी पर आके फिर वो क्लोराइड चैनल पे करते हैं. दे इंक्रीज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ chloride inside the lumen and that attract the sodium along with water inside the lumen. They reduce the work as the stool softener के तौर पे काम करते हैं. Result से इनका mechanism of action. So we treat the patient with IBS with symptomatic constipation, diarrhea predominant, abdominal bloating, mild cases में education, stress management, diet and exercise. Moderate cases में आप constipation में laxative देते हैं या chloride activator देते हैं, cyclic agonist देते हैं. इस तरह diarrhea predominant में antidiarrheal drugs देते हैं या antibiotic probiotics देते हैं, antispasmodic agent देते हैं या tricyclic antidepressant. Tricyclic antidepressant drugs क्या करती हैं? They increase the threshold of the pain. जो थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो गया है, थोड़ी स्टिमुला पे वो पेन फील होता है, और वो ज्यादा स्टिमुला पे पेन होगा, इस तरह की कंडीशन. इसलिए ये दवाई दी जाती है. आपने लिवर ट्रांसप्लांट तो सुना होगा, आपने किडनी ट्रांसप्लांट भी सुना, different transplantation, or this is the fecal microbiota transplantation. This is a new advancement in the gastroenterology. कि भाई in randomized controlled trials with IBS were assigned to active fresh frozen donor fecal microbiota transplantation. इन्होंने क्या किया, एक हेल्दी पेशेंट का स्टूल फ्रेश फ्रोज करके जो आईबीएस वाले पेशेंट हैं उनमें थ्रू एंडोस्कोपी वो ट्रांसप्लांट किया. एक का फीकल मटेरियल दूसरे पेशेंट के गट के अंदर छोड़ के आना. आफ्टर 3 months देखा गया कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन आईबीएस सिम्पटम्स observed in patient treated with fecal microbiota transplantation as compared with placebo. तो भाई 60%, 65% सिम्टम्स पेशेंट में सिम्टम्स डिक्रीज हुए, और जिन्होंने प्लेसिबो कोई भी कुछ नहीं लिया, प्लेसिबो लिया, उनमें 43% में हुआ. तो इस आर्म में जिन पेशेंट्स में ये ट्रांसप्लांट किया गया फीकल मटेरियल, उनमें सिम्टम में इम्प्रूवमेंट देखी गई आफ्टर 3 months. ठीक है, तो ये और अदर न्यूअर ट्रीटमेंट्स हैं बियॉन्ड यूर स्कोप पे, मगर ये आजकल जो ट्रीटमेंट इस पे बड़े ट्रायल्स हुए हैं कि देखते हैं कि भाई फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन मे वर्क इन द आईबीएस. एक पेशेंट का गट मटेरियल दूसरे पेशेंट के गट में डाला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन. ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है. So this was all about IBS. Anybody want to ask questions? जीअं तव्हांखे बहितर लॻे. तव्हां सिर्फ़ु 3rd ईयर खे पढ़ाईंदा हो न, जंहिं बेचनि में मसइलो आहे न उन्हनि में तव्हां कयो बस.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। हाँ सर, क्लास मुझे पूरो थिया। क्वेश्चन आंसर कंदो पुछो स्टूडेंट का। स्टूडेंट्स जिसको भी सर से क्वेश्चन करने हैं वो अनम्यूट करें और सर से पूछ सकते हैं जो भी। स्टूडेंट्स सुन सकते हैं आप लोग? प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। No question. Sir, no question. ओके थैंक यू।